السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ سے امید رکھ، اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جتنا سہے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائش ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ پاک سے جڑے رہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ یقین رکھو اللہ پاک پر اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا اللہ پاک۔ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی وہی دیتا ہے، پھر فکر کیسی؟ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ آسمان پر اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب اس نے وہ چیز تمہیں دینی ہو۔ گرتے ہوئے سنبھال لیتا ہے، وہ تمہیں تو کیا دکھ میں اکیلا چھوڑے گا؟ وہی ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تم تب بھی دعا کرتے رہنا، جب تمہارے پاس کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ پاک نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو راستہ اللہ پاک تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے یا نہ ملے، اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ پاک تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ پاک تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ پاک سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ پاک پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو یعنی یقین اور اللہ پاک کی اطاعت، اور جب طلب کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ پاک سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پاک پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ پاک بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعا قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ پاک تمہارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیے، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، طبق اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی طرف میں ہم اللہ پاک کے اور قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی
बंदे से दोस्ती करें तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं उसे यह खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन कुन की मंजिल तक लेकर जाता है, ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मौजे होते हैं। मुतमैन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फयाकुन के मोजिजे उतरने वाले हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम यकीन के बाद कहानी मोजिजों की लिखी जाए। अपने दिल की कैफियत उससे बताया करो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। मोजिजे होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। बात तो सिर्फ ईमान तबक सब्र की होती है। अगर कभी तुम थक जाओ तो तुम कभी मायूस न होना। रब से गुफ्तगू करना, सफर की जुस्तजू करना, यह अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो। यकीन तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। यकीन तो सुलगती हुई आग को भी ठंडा कर देता है। तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मोजिजों का बहुत खास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे थाम लेगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसी में अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह पाक की मर्जी से होता है। बेखौफ हो जाओ, तुम्हारे सारे मामलात अल्लाह पाक के हाथ में और उससे बेहतर और बड़ी कुदरतों वाला कोई भी नहीं, तुम्हारा नसीब भी नहीं। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफर बेहतरीन। मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आ जाए और मुझे जाने में। ना कर नसीब से इतने गिले। इंसान जब अल्लाह पाक राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नियमत है। 3 लोगों को कभी न भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीम मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। कमजोर इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। 2 किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागर, दूसरा मुनाफिक। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। किसी को आंसू देने से पहले यह सोच लेना क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह अर्श तक जाती है। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह पाक मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में ही हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं।
होता। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी से इतना प्यार न करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते हैं। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। वक्त तो गुजर जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। रिश्तों का न होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती है या कुछ ना कुछ सिखा देती है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसान उसे तवक कम से कम रखे और ऊपर जो जात है उस पर तवक रखे। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटें। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जत देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। गम और परेशानी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है, बस जिसने परेशानी पर कदम रख लिया वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोशिश करें जहां रहें वहां अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसाइश पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। कोई कितना बुरा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई औहदा, ताकत या दौलत मिलती है। सिखाने के लिए किताब है और जिंदगी है, बस तुम्हें सीखने का शौक हो। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी ये 3 चीजें ना सीख सका वो जाहिल है, और वो 3 चीजें ये हैं: ईमान, अखलाक और एक दूसरे का साथ। हमदर्दी। जितना नेकी की राह पर चलोगे उतनी अल्लाह पाक की मदद आएगी, जितनी अल्लाह पाक की मदद आएगी उतना कामयाब हो जाओगे। चंद दिन रब के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की कैद से बेहतर है। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाह से बचने में आसानी होगी। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। कुछ लोग इंसानों के जाने से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की बेआवाज लाठी खाने से ही समझते हैं। दिलों पर राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहां भी रहे मुखलिस रहे। मुझे लगता है कि कामयाबी की एक सूरत यह भी है कि हम किसी की दुआओं में रह जाएं, और सबसे बदतरीन खसारा यह है कि हम अपने रवैया और आदत की वजह से किसी की दुआओं से निकल जाएं, मनफी हो जाएं। कोशिश करें कि अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि आप बिना किसी वजह के भी दुआओं में याद रह जाएं। अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदों की जरूरत पूरा करने के लिए खास तौर पर नेमतों से नवाज देता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि यह इंसान का जहनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को चंद मिनटों में हड़प कर जाती है।
जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश इसलिए करता है ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो सके। क्या कर लेंगे इंसान, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त जाया करोगे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अल्लाह पाक ने आपके सामने उन कमजोर लोगों को जाहिर किया है जिन पर आम मोहब्बतें लुटा रही हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उन्हें जिंदगी में कभी बेलोज मोहब्बतें नसीब हों। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद बना लेता है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनके दिल हमेशा किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहत नहीं दी जाती, कई बार हम वजाहत इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदों के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। हर इंसान को यह फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। अगर आंख की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। एक बहुत मुख्तसर और गहरी बात, दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। उसूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। यह भी एक सच है, इंसान को रब तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो जरूर साथ जाते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद कराता है जो सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। किसी जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। सच्चाई की सबसे बड़ी सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह पाक हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद हो जाता है लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे तो यह सोच ले कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। दुआ की जरूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी, यह भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द खत्म हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है।
मिट जाती हैं एक खास वक्त पर। हाँ, जब वो अल्लाह पाक चाहे। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है, जो बहुत जल्दी मान जाता है। यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिज़्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने उनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनके तमाम काम को संवार देता है, और जिस काम को अल्लाह पाक संवार दे तो कोई मखलूक उसे बिगाड़ नहीं सकती। जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अपने अज़म, हौसले और लगन किसे हासिल करता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजार करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आसमां जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। कितना खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कहते हैं, हालांकि वो पहले से वाकिफ होता है मगर फिर भी हमें सुनना चाहता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान न करना। रब जो चाहे वो कर सकता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेआज़गार छोड़ सकती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। इज्जत उतनी ही दो जितने की कोई काबिल हो, अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, एक काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बजमीर सच्चे और उसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमजोर न कर, मुझे बख्श दे। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं, आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तस्करा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ ना इंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोच कर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना नामुमकिन लगे, और तवक्कुल रखो अल्लाह पाक पर, फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाए, फरिश्ते फौरन उन्हें
عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ جرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافق جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کے جالوں سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڈھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڈھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خود رب کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ بن جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بدباپ اور بے سب اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں جد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے۔ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اچھا سوچے اور اچھا بولے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ رب سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہل سے بحث۔ 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے; صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے; اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جس کا جرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ دنیا کی دولت اللہ پاک انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکلیں کتنی بڑی ہیں، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ پاک کتنا بڑا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ پاک۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ یہ 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو، حالات کی تاریکیوں سے نہ گھبراؤ، اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور بار کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔
खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि रब ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। जब आपको अल्लाह पाक की मसलियत समझ आने लगती है, फिर आपका दिल जिद करना छोड़ देता है। अपने फैसलों को अल्लाह पाक पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, यह अल्लाह पाक से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आपकी आंखों को नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंख को पुनम कर दिया। अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से शिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा भेजा है, यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जो कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनेस करती है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।